Hello students, we will continue our chapter which is chapter 4, the Mughal Empire of History section. Our first topic is Mughal tradition of succession. Now what is the meaning of succession? Succession means विरासत. विरासत में जो मिलता है, मुगल्स के सन्स को विरासत में क्या मिलता था? That is we are going to discuss here. So on the page number 50 we have this topic. The Mughals did not believe in the rule of primogeniture where the eldest son inherited his father's estate. मुगल्स ये चीजों में बिलीव नहीं करते थे कि जो बड़ा सन हो उसको ही सारे फादर की प्रॉपर्टी मिले. Instead they followed the Mughal and Timurid custom of compulsory inheritance or a division of the inheritance among all the sons. मुगल्स में बहुत अच्छा ट्रेडिशन था कि जो भी सन्स रहते थे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन किंग एंड 4 सन्स आर देयर, सो ऑल दी प्रॉपर्टीज दे यूज्ड टू डिवाइड इक्वली. ऐसा नहीं था कि बड़ा सन है तो उसको सारा मिल जाएगा. दे यूज्ड टू डिवाइड इक्वली. फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रेवेलेंस बाय मुगल प्रिंसेस. Which do you think is a fairer division of inheritance? आपको क्या लगता है कि कौन सा डिवीजन अच्छा है, प्रीमोजेनिचर और compulsory? If anyone will ask me, then I'll say that compulsory is good. Why? Because everyone is getting the equal share of a father's property, so it's good. Our second topic we have Mughal relations with other rulers. मुगल्स के रिलेशंस कैसे थे दूसरे रूलर्स के साथ? टेक अ लुक एट टेबल 1 once again that we discussed table 1 in the part 2. So you can also flip the page and see which is given here, table 1 on the page number 48. You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. हमको ये नोटिस में आएगा कि मुगल ने क्या किया था, कॉन्स्टेंटली डूइंग द कैंपेन्स अगेंस्ट द रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. जो रूलर्स उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उनके सामने कॉन्स्टेंटली दे वर डूइंग द कैंपेन्स. बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स आल्सो जॉइंड देम वॉलंटरीली. एज मुगल्स वर पावरफुल, सो अदर rulers joined them. The Rajputs are a good example of this. Rajputs joined the Mughal. Many of them married their daughters into Mughal families. Many Rajput kings married to the Mughal daughters and received high positions, and because of that they received the high positions. But many resisted as well. Resisted यानी बहुत सारों ने अपना डिसएग्रीमेंट भी दिखाया, रिफ्यूज भी किया. द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. सिसोदिया के जो राजपूत्स थे उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक इनका विरोध जारी रखा. वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स. एक बार अगर वो हार जाते हैं, they were honorably treated by the Mughals. बहुत मान के साथ मुगल्स उनको ट्रीट करते थे. given their lands, उनको अपनी जमीन देते थे back as assignments. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. अब ये मुगल्स में बहुत अच्छा क्वालिटी था मुगल किंग्स में कि अगर कोई उनके सामने हार जाता है दैट इज ओके, पर वो कभी उनको ह्यूमिलेट नहीं करते थे, उनका इंसल्ट नहीं करते थे.
तो उनका इम्प्रेशन जो है बहुत अच्छा रहा, बहुत लंबे टाइम तक दूसरे किंग्स के ऊपर या चिफ्टेन्स के ऊपर. But it was difficult to keep this balance all the time. Look at table 1 again. Note that औरंगजेब insulted शिवाजी. उन्होंने क्या किया था? औरंगजेब ने insult किया था शिवाजी का when he came to accept Mughal authority. What was the consequence of this insult? इसका परिणाम क्या आया? ये इंसल्ट का परिणाम या रिजल्ट क्या आया? So Mughals were really good at keeping the good relations with other Mughals. Next topic we have is Maan Sabdars and Jagirdars. Maan Sabdars and Jagirdars. As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. मुगल्स ने बहुत अलग अलग लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट किया. जैसे जैसे उनका जो एम्पायर था वो बड़ा होता जा रहा था, फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ Turkish nobles, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. उन लोगों ने जैसे जैसे जीत हासिल होती गई उनका एम्पायर बड़ा होता गया, and they also included many other groups also. Those who joined Mughal service were enrolled as Mansabdars. जिन्होंने मुगल सर्विस को ज्वाइन किया, they were enrolled as Mansabdars. The term Mansabdar refers to an individual who holds Mansab, meaning a position or rank. Mansabdar का मतलब होता है a person who is having a position. It was a grading system used by Mughals to fix rank, salary and military responsibilities. ये पोजीशन दिया जाता था किसके लिए? टू फिक्स द सैलरी, ग्रेड एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड Z. सैलरी किससे डिटरमाइन होती थी? Z से. द हायर द Z, द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नॉबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी. तो Z के हिसाब से उनका पोजीशन और सैलरी पता चलता था. The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of sawar or cavalrymen. The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. So यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मान सबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो मान सबदार थे उनकी मिलिट्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. उसमें किस चीज की जरूरत रहती थी? मेंटेन करना होता था स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार की. हॉर्स राइड जो करते हैं उसको सवार बोलते हैं. तो उसमें उनको मेंटेन करना होता था कि इतने हमको घोड़े सवार चाहिए और कावलरी मैन. So they had to decide particular number for this. The Mansabdar brought his cavalrymen for review. रिव्यू के लिए उनको बुलाया जाता था. cavalrymen को उनको रजिस्टर किया जाता था. Their horses branded. उनके जो horses थे उनको भी ब्रांडिंग मिलती थी. Then received money to pay them as salary. और मनी भी रिसीव मतलब दे यूज टू रिसीव द मनी ऑल्सो. Mansabdars received their salaries as revenue. उनको अपना सैलरी एज अ रेवेन्यू मिलता था. असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स, जिसको जागीर्स बोला जाता था, विच वर समवॉट लाइक इक्तास, जो इक्तास के जैसा था. बट अनलाइक मुफ्तीज,
most Mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. पर मुक्तिस के जैसे ज्यादातर मानसबदार जो थे वो कहाँ रिसाइड करते थे? एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर करते थे अपनी जागीर्स को. They only had rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants, while the page number 52. Mansabdars themselves served in some other parts of the country. Now we have the second paragraph on the page number 52. In Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the Mansabdar. अकबर का जब शासन था, इन अकबर्स रेन, दिस जागीर्स, ये जो जागीर्स थी उनका असेसमेंट होता था केयरफुली सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल. तो उनका जो रेवेन्यू रहता था वो मोस्टली इक्वल था, मानसबदार की जो सैलरी थी उनसे इक्वल था. बाय औरंगजेब्स रेन दिस वाज नो लॉन्गर द केस. औरंगजेब का जब शासन था तब ये सब चीजें नहीं थी. And the actual revenue collected was often less than the granted sum. और जो actual revenue था वो बहुत कम collect किया जाता था. There was also a huge increase in the number of मानसबदार. मानसबदार के नंबर में भी काफी increase पाया गया, which meant a long wait before they received a jagir. This and other factors created a shortage in the number of जागीर्स. इसकी वजह से जागीर की नंबर्स में शॉर्टेज होने लगी. As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir. तो उसका रिजल्ट क्या आया कि बहुत सारे जागीरदार ने ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए if when they have a jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign. और औरंगजेब नाकामयाब रहे ये सब चीजों को कंट्रोल करने में. एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली. पीजेंट्री यानी कि एग्रीकल्चर लेबरर को बहुत सहना पड़ा उसकी वजह से. देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक विच इज ज़ब्त एंड जमींदार्स. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. सबसे बड़ा इनकम का सोर्स क्या था? टैक्स जो था वो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स था. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain. लोकल चिफ्टेन के थ्रू पीजेंट्स अपने टैक्स पे करते थे. द मुगल्स यूज्ड वन टर्म, वो एक टर्म यूज करते थे, जमींदार्स, टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज वेयर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चिफ्टेन्स. अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर तोदरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप fields, prices and area cultivated for a 10-year period 1570 to 1580. अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो कौन थे? तोदरमल. उन्होंने क्या कैरी किया? कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे. उन्होंने एक बहुत केयरफुल सर्वे किया था ऑफ क्रॉप यील्ड्स, प्राइजेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10-year पीरियड. उन्होंने ये चीजों का 10 साल तक सर्वे किया. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड. ये डेटा के बेस के ऊपर टैक्स जो था वो फिक्स किया गया ऑन ईच क्रॉप इन कैश. ईच प्रोविंस was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. हर एक प्रोविंस जो था उसको डिवाइड किया गया रेवेन्यू के सर्कल में विथ इट्स ओन स्केड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स. मतलब ये अलग अलग रीजन में अलग अलग रेवेन्यू का सर्कल रखा गया और उनका अलग अलग स्केड्यूल रहता था कि ये टाइम पे आपको
रेवेन्यू पे करना है. दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज